Dear students, today we have to discuss the phenomena of isomerism in coordination compounds. In coordination compounds, there are two type of isomers. First one is structural isomer. In structural isomer, atom to atom sequence are different, but in stereoisomers, atom to atom sequence are same. There are two type of isomers. One, first one is structural isomer. In this structural isomer, and second one is stereoisomer. First of all, I like to explain what is are structural isomers. These complexes have the same molecular formula, but different sequence of atom or group around the central atom that have to generate the structural isomer. That means if two of the complexes have the same molecular formula, there is a difference in the sequence of atom or group around the central atom. That one is known as structural isomers. For example, there are there are basically five type of structural isomers. First one is ionization isomers. Here you are seeing that this ionization isomer. In ionization isomer, this is the coordination sphere. Here you are seeing that this is the coordination sphere. And in this coordination sphere, you are seeing that what's happened here. In this coordination sphere, this is the chloride. This is the chloride ligand which present in the coordination sphere, and the sulfate ligand, the sulfate ion present outside the coordination sphere. If there is exchange takes place between these two, that means this chloride comes in the form of ionic part, and the sulfate becomes the part of coordinate bond. There is the formation of some new complexes in which the sulfate present in coordination sphere and chloride present outside the coordination sphere. Overall, the molecular formula for both are same, but in the first case, there are five amine, ammonia ligands, one chloride ligand coordinated to this cobalt. Whereas in second case, this five ammonia and one of the sulfate ligand coordinated to this cobalt. In the first case, the sulfate is out of the sphere, whereas in second case, chloride is out of sphere. And overall, such type of the isomers are known as ionization isomers. Because after the ionization, we have got, in the first case, after the ionization, we have got the sulfate. And in second case, after the ionization, we have got the chloride ion. How we confirm that? When the first one treated with barium chloride, when this first complex treated with barium chloride, it gives 1 mole of barium sulfate precipitate. It gives 1 mole of barium sulfate precipitate. But when it reacts with silver nitrate, we found that there is no the reaction. It indicates that the sulfate ion is out of sphere. This attaches to this coordination sphere by means of the ionic interaction. This sulfate ion is ionizable, and this that's why this one react with barium chloride
gives 1 mole of barium sulfate precipitate. देखा आपको? अब देखिए दूसरे केस में क्या है। अब दूसरे केस में हम लोग जब देखते हैं तो दूसरे केस में this sulfate ion is in the sphere. The sulfate ion is in the sphere and this chloride is out of his sphere. That means this chloride is ionizable, but sulfate is not ionizable because it coordinated to cobalt by means of coordinate bond. This is the part of this coordination sphere. This one is not ionizable. That's why when the reaction takes place between this complex with barium chloride, there is no the reaction. No the reaction takes place. But when it reacts with silver nitrate, it gives 1 mole of silver chloride. This is the clear indication that formation of 1 mole of silver chloride, this chloride attached to this complex by means of ionic interaction. This chloride is ionizable, whereas in the first case sulfate is ionizable, and overall the molecular formula for both one is same. That's why they are known as ionization isomer because in both the cases ionized part is sulfate and chloride. Like the same way, there is hydrate isomer. Yes, third one. This is hydrate isomer. This hydrate isomer is similar to ionization isomer. Only difference is that only difference is that the there is exchange takes place between the water and water molecule. When the number of water molecule in the coordination sphere and outside the coordination sphere differ to each other. In those cases, we can say that this isomer is hydrate isomer. Just for example, in this first case, the 6 water ligands are coordinated to this chromium, and the 3 chloride ions are outside the sphere. But when this reaction takes place with silver nitrate, we found that there is the formation of 3 mole of silver chloride. This is the clear indication that this all these 3 chloride ions attached to this coordination sphere by means of ionic interaction. That's why they are ionizable, and that gives 3 mole of silver chloride. In the second case, the water molecule count is only 5. In the sphere, the water count is 5, whereas in the first case, the water ligand count is 6. And this sixth water ligand becomes the part of outer sphere. And one of the chloride becomes the part of the coordination sphere. That means overall there is 1 water molecule is outside the sphere and only 2 of the chloride are outside the sphere. That's why when the reaction takes place with silver nitrate, we found that we have got 2 mole of silver chloride. In this case, this is similar to ionization isomer, but here number of water molecule in the coordination sphere and outside the coordination sphere are differ. That's why this one is known as hydrate isomer. This one is, and there is no the hydrate. This one is
monohydrate because one of the water molecule is outside the sphere and this one is monohydrate. Like the same way, when two of the water molecule becomes the part of outer sphere, then this one is known as dihydrate and two of the chloride becomes the part of the coordination sphere and only one of the chloride is outer sphere. When this reacts with silver nitrate, it gives 1 mole of only 1 mole of silver chloride. In all these three cases, the number of water molecule count are 6, but in the coordination sphere there are 6. All the 6 water molecules become the part of this coordination sphere. In this case, 5 are the part of the coordination sphere, whereas in this case, 4 are the part of the coordination sphere. They differ in because of the number of count of water molecule in the coordination sphere. That's why such type of isomers are known as hydrate isomer. Clear है? Next, coordination isomer. In this coordination isomer, here, this is the coordination isomer. In this coordination isomer, what's happened here? There is two part. One is the cationic part, another one is anionic part. Firstly, we have to write the cationic part, and this cationic part followed by the anionic part. In this first case, this six of the ammonia ligands attached to cobalt. This ammonia ligand is neutral. Cobalt present in +3 oxidation state. That's why overall there should be the 3 positive charge. In order to compensate it, another coordination sphere in which these 6 cyanide ligands attached to chromium, and this chromium also present in +3 oxidation state, that gives the anionic part of the coordination sphere. Overall, this cationic and anionic part becomes the part of the complex. In the first case, all the 6 ligands of ammonia attached to cobalt, whereas all the 6 cyanide attached to chromium. But in second case, this ammonia should coordinate it to chromium, and this chromium also present in +3 oxidation state, and this ammonia is neutral ligand. That's why when the chromium present in +3 oxidation state, that becomes the part of cationic ligand, and this is anionic ligand. Overall, there is the change in the ligand with different metal, and there is the coordination of this ammonia with cobalt, but in this case the coordination of ammonia with chromium, and in this case both the cationic part and anionic part, the metal coordination changes. That's why this type of isomers are known as coordination isomer. कोऑर्डिनेशन आइसोमर समझ गए आप कि जहां पे मेटल क्या है, मेटल के साथ जो लीगेंड पहले में अटैच हैं वो दूसरे में वो अपना एक्सचेंज कर ले, तो इस तरह के आइसोमर्स को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर. अब ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर. इन कोऑर्डिनेशन पोजीशन, दिस कोबाल्ट, in this cobalt is attached to left hand side. Cobalt is attached to 4 of the ammonium ligand, whereas right side of this cobalt
metal attached to two of the ammonia ligand and two of the chloride ligand. This OH acts as bridging ligand. These both of the OH acts as bridging ligand, and the four of the ammonia attached to this cobalt, and second metal, that cobalt, the two of this one is attached to two ammonia ligand as well as two chloride ligand. But in the second case, when this chloride change its position from here to here, one of the chloride shifted from right side to left side, and one of the ammonia ligand shifted from left side to right side. Then the structure becomes like this way. That means in this case, this CO metal, which present in plus 3 oxidation state, attached with 3 ammonia and 1 chloride. Like the same way, the second CO also attached with 3 ammonia and 1 chloride. And these two joined together by means of bridging ligand, that is CO, or that is OH hydroxide ligand. And there is the change in the position of ligand. Here ligand, one chloride is here, another chloride is here. But in this case, both of the chlorides are here in the first case. And there is the change in the position of this chloride ligand, and such type of the isomers are called is called coordination position isomer. Like the same way, linkage isomer. Fifth one is the linkage isomer. One should you people should note it that this linkage isomer can be only and only shown by the ligand which acts as ambidentate ligand. Only ambidentate ligand have the ability to form ligand and linkage isomer. If the ligand is not ambidentate, then there is no the possibility of linkage isomer. That's why linkage isomer can be only possible when ligand acts as ambidentate ligand. Ambidentate, what do you mean by ambidentate? If ligand have the ability to coordinate with two different sides, just for example, suppose A, B is the ligand. When this coordinated to metal through A, or it is also possible that if ligand have the ability to coordinate it to metal with B site, then such type of ligands are known as ambidentate ligand. Ambidentate ligands in those are those in which there are two sides, and one case it attached to metal by one side, but in another case it have the ability to attach to metal from another side. Such type of uh, such type of the isomers are known as linkage isomer. Just see here. In the first case, there are 5 ammonia ligand and one is nitrite ligand. This nitrite ligand acts as ambidentate ligand. In this case, is attached to metal through nitrogen center. This attached to metal through nitrogen center. But in this case, this attached to metal through oxygen center. This is NO2. This NO2 can attach to metal through nitrogen center as well as oxygen center. In both the cases, molecular formula is same, but point of attachment of ambidentate ligand in both the cases are different. That's why this one comes in the part of linkage isomer.
Second example is this. This one is in the uh, in these two cases. Here, this is SCN, thiocyanide ligand. This thiocyanide ligand can attach to metal through sulfur, and this also attach to metal through nitrogen. In the first case, this attached to cobalt through sulfur center, whereas in second case, this attached to cobalt through nitrogen center. And here there is only difference is the point of attachment of this thiocyanide ligand, and such type of isomers are known as linkage isomer. तो आपने देखा लिंकेज आइसोमर केवल और केवल कहां पॉसिबल है, जहां पे मेटल क्या हूं, एम्बिडेंटेट लिगेंड बिहेवियर रखते हैं। अगर एम्बिडेंटेट बिहेवियर नहीं रखते हैं मेटल, तो उन केसेस में ये इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं। तो आपने देखा कि कितने तरह के आइसोमर हो गए, 5 टाइप्स के आइसोमर है। पहला क्या है, लिंकेज आइसोमर। पहला क्या है आपका आयनाइजेशन आइसोमर। दूसरा हाइड्रेट आइसोमर, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल का काउंट आउटसाइड द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर डिफरेंट हो। नेक्स्ट क्या है कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर, यहाँ आपके दो पार्ट हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, एक पॉजिटिव पार्ट और दूसरा नेगेटिव पार्ट, दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसमें लीगेंड आपस में एक्सचेंज कर लें। अब तो वो सारे लीगेंड्स क्या कहलाते हैं, आपके लीगेंड आइसोमर, आपके ये कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर। और नेक्स्ट केस में अगर इन लीगेंड की पोजीशन चेंज हो रही है, अगर लीगेंड की पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो आइसोमर आपके लीगेंड पोजीशन आइसोमर कहलाते हैं। और लास्ट है आपका लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर केवल और केवल उन्हीं केसेस में पॉसिबल है जहां पे लीगेंड एम्बिडेंटेट हो, और ये एम्बिडेंटेट लीगेंड अगर दोनों साइड्स इनकी अलग अलग हैं, उनसे अटैच हो रहे हैं और आइसोमर जनरेट होते हैं, उसको हम कहते हैं लिंकेज आइसोमर। क्लियर है? अब देखिए, आपको पहले बताया था स्ट्रक्चरल आइसोमर में, क्या बताया था कि सीक्वेंस क्या हो, अलग अलग हो। अटैचमेंट का सीक्वेंस क्या है, अलग है। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये कार्बन 5 है, 5 कार्बन है। ये 5 कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सब एक दूसरे से स्ट्रेट चेन में लिंक है। लेकिन दूसरे केस में ये जो थर्ड, ये कार्बन है आपका, ये कार्बन एक इस साइड से कार्बन से अटैच है, इधर से भी कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से अटैच है। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, हर एक कार्बन केवल 2 ही कार्बन से अटैच है। लेकिन यहाँ ये पर्टिकुलर कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो ये लिंकेज चेंज हो गया, तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक यही बात यहाँ देखें अगर आप, तो ये आप कार्बन देख रहे हैं, ये सेंटर वाला कार्बन, ये सेंटर का कार्बन, आप देखें कि ये सेंटर का कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से अटैच है। ये देखिए, ये सेंटर का कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से अटैच है, और टोटल काउंट कितना है, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो इन तीनों में आपने देखा 5 कार्बन यहाँ भी है, 5 कार्बन यहाँ है, 5 कार्बन यहाँ, लेकिन इसमें एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसमें 3 कार्बन जो है 2 कार्बन से अटैच है, और रेस्ट कार्बन क्या है आपके सिंगल सब हाइड्रोजन से अटैच। तो इस तरह के आइसोमर्स जहां पे आपके सीक्वेंस सेम नहीं है, वो सब के सब स्ट्रक्चरल आइसोमर की कैटेगरी में आते हैं। अब आइए
स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में देखिए कि सबका एटम टू एटम सीक्वेंस सेम है। सब में एटम टू एटम सीक्वेंस कैसा है? सेम है। लेकिन सब में देखिए सेम एटम टू एटम, दैट इज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम सीक्वेंस ऑफ एटम, but different spatial arrangement around the central matter in the complex. Such type of isomers are known as stereoisomers. That means कि जहां पे एटम टू एटम सीक्वेंस सेम है, जैसे ये 4 कार्बन है, एटम टू एटम सीक्वेंस सेम है, लेकिन ये जो आपके कार्बन है या ये कार्बन है, ये कार्बन है, इनका स्पेशियल अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में डिफरेंट हो, तो वो सारे किसके पार्ट कहे जाएंगे? स्टीरियो आइसोमर के पार्ट कहेंगे जाएंगे। दैट मीन्स कि उनका एटम टू एटम सीक्वेंस सेम है, लेकिन स्पेस में सेंट्रल एटम के अराउंड जो भी ग्रुप या एटम अटैच हैं, उनका स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग होगा। वो सारे के सारे स्टीरियो आइसोमर कहे जाते हैं। अब स्टीरियो आइसोमर भी 2 तरह के क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पहला क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और दूसरा क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम नॉर्मली क्या कहते हैं? सिस ट्रांस भी कहते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमर के लिए हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी और या स्मॉल एल, और इस स्मॉल डी को आप प्लस साइन से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल एन को माइनस साइन से। ये प्लस स्मॉल डी या प्लस डी डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल एल और स्मॉल और या माइनस ये लीवो को रोटेट करता है। तो पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर पे आएंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है? अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर नॉर्मली सिस ट्रांस आइसोमर भी कहे जाते हैं। इसमें क्या है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में होंगे जहां पे डिफरेंट पोजीशंस होंगी। अगर सारी पोजीशन एक जैसी होंगी तो ये सिस ट्रांस आइसोमर नहीं पाए जाएंगे। जैसे आप कहते हैं टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। अब टेट्राहेड्रल अगर आप देखें, ये टेट्राहेड्रल है। इस टेट्राहेड्रल में, एक मिनट होल्ड करिएगा अदिति। अच्छा चलिए, ये टेट्राहेड्रल है। इस टेट्राहेड्रल में आप क्या पाते हैं कि सारे के सारे ये जो बॉन्ड है ये कितने एंगल पे हैं? 109 डिग्री, 109 डिग्री, 109 डिग्री, 109 डिग्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सारे बॉन्ड एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट पे इंक्लाइंड है। दैट मीन्स सब एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। सारे बॉन्ड एक दूसरे के क्या हैं? एडजेसेंट हैं। जब सारे एक दूसरे के एडजेसेंट हैं तो केवल एक ही पोजीशन होगी, तो आप देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे नहीं बनेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं जनरेट होंगे टेट्राहेड्रल में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नॉर्मली हम अगर 4 कोऑर्डिनेशन और 6 कोऑर्डिनेशन में पाते हैं। 4 कोऑर्डिनेशन में क्या है? 4 कोऑर्डिनेशन में 2 पॉसिबिलिटी है। एक टेट्राहेड्रल की पॉसिबिलिटी है और दूसरा स्क्वायर प्लेनर की पॉसिबिलिटी। तो टेट्राहेड्रल में तो ये एकदम से नहीं बनेगा, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में बनने के चांसेस हैं। तो आपने देखा सिस और ट्रांस आइसोमर
कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? दे डिफर इन द पोजीशन, दे डिफर इन द पोजीशन ऑफ द लीगेंड अराउंड द मेटल. That means it is possible that they are adjacent to each other or opposite to each other. When they are adjacent to each other, such type of the isomer is are called cis isomer. And if the same type of ligand present opposite to each other, those are known as trans isomer. तो ये सिस और ट्रांस आइसोमर कहाँ बनेगा? केवल और केवल आपके बनेंगे स्क्वायर प्लेनर में, लेकिन टेट्राहेड्रल में बनने के कोई चांसेस नहीं. अब देखिए, जैसे इसको आप देखें, ये है टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर. देखिए ये टेट्राहेड्रल दिखाया गया है आपको. एक बार फिर से बना देते हैं तो आप पाएंगे क्या? ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसे, आप देखिए कहा क्यों स्क्वायर प्लेनर में होगा और टेट्राहेड्रल में नहीं होगा. आप देखिए अगर तो पाएंगे क्या? ये है टेट्राहेड्रल. इस टेट्राहेड्रल में आप देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है, ये और ये बॉन्ड एक दूसरे से कितने डिग्री पे हैं? 109 डिग्री. अभी 109 डिग्री है, तीसरा भी 109 डिग्री है और चौथा भी 109 डिग्री पे है. तो सब एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे? एडजेसेंट. एक दूसरे के क्या हैं? एडजेसेंट हैं. अदिति एक मिनट होल्ड करिएगा. देखिए यहाँ टेट्राहेड्रल में आप पाते क्या है कि सारे के सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट. जब सारे के सारे 109 डिग्री 28 मिनट्स हैं तो सब एक दूसरे के एडजेसेंट कहलाए जाएंगे. यहाँ दो अलग अलग पोजीशंस नहीं. जब दो अलग अलग पोजीशंस नहीं होंगी तो उन केसेस में ये सिस और ट्रांस आइसोमर की पॉसिबिलिटी नहीं. लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, देखिए यहां स्क्वायर प्लेनर, इस स्क्वायर प्लेनर में आप देखिए, अब स्क्वायर प्लेनर में क्या है? तो आप देख रहे हैं कि ये है स्क्वायर प्लेनर. यहां आप देखिए कि ये स्क्वायर प्लेनर, ये एक्स एक्सिस और ये मान लीजिए वाई एक्सिस. ये लीगेंट, इस लीगेंट को, ये लीगेंट जो भी अटैच हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, तो देखिए ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये लीगेंट सपोज ए अटैच है और ये लीगेंट ए अटैच है. तो ये ए और ए लीगेंट एक दूसरे से कितने डिग्री पे हैं? कितना ये एंगल और कितना है इनके बीच में? 90 डिग्री. कितना है? 90 डिग्री. देख रहे हैं ना आप? ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. लेकिन अगर यही दूसरे केस में आप देखें कि ए यहां अटैच है और ए यहां अटैच है, तो क्या होगा? ये एंगल कितना हो जाएगा एक दूसरे से? 180 डिग्री. 180 डिग्री. तो 180 डिग्री जो ये एंगल है, ये क्या हो गया? अपोजिट.
एक दूसरे के सेम जो लीगेंड्स हैं एक दूसरे के किस पोजीशन पे हैं, अपोजिट पोजीशन। तो ये अपोजिट पोजीशन पे जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, ट्रांस। और जो आपके एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे, इस केस में आप देख रहे हैं कहाँ है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, तो ये कहलाएंगे आपके सिस और ये कहलाएंगे ट्रांस। तो आपने देखा कि नॉर्मली 4 और 6 कोऑर्डिनेशन है। 4 कोऑर्डिनेशन में टेट्राहेड्रल में सिस और ट्रांस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सिस और ट्रांस टेट्राहेड्रल में नहीं बनेगा। आप देख रहे हैं कि सिस और ट्रांस टेट्राहेड्रल में नहीं बनेगा। अगर बनेगा सिस और ट्रांस तो स्क्वायर प्लेनर में बन सकता है, और स्क्वायर प्लेनर में भी क्या कंडीशंस हैं, स्क्वायर प्लेनर में क्या क्या कंडीशंस हैं बनने के लिए, ये आपको हम देखिए बता रहे हैं। ये आप कह सकते हैं स्क्वायर प्लेनर में टेट्रा कि कब बनेगा और कब नहीं बनेगा। देखिए अगर हम लोग स्क्वायर प्लेनर लें तो किन किन कंडीशंस में सिस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी होगी, और सिस और ट्रांस स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक इन सेंस कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जहां पे सेम टाइप ऑफ लीगेंड्स अटैच होंगे, दो लीगेंड्स क्या हो, कम से कम सेम होंगे, उन्हीं में सिस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी होगी। और अदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ हो सकती है। देखिए मान लीजिए आपने लिया एक मेटल, ये मेटल, इस मेटल से अटैच है A4, मान लीजिए 4 लीगेंड हैं और चारों लीगेंड क्या हो, एक जैसे हैं। ये चारों लीगेंड कैसे हैं, ये चारों लीगेंड जैसे ए ए ए, सारे लीगेंड एक जैसे हैं। ऑल द 6, ऑल द ए एडजेसेंट टू, ये सारे एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप डिफाइन नहीं कर सकते। दैट मीन्स यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। Ma3B, यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ए और बी, यहाँ में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन सकता है, यहाँ भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर Ma2B2, Ma2B2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, Ma2B और C में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। कैसे, आप देखें, ये जो A है, ये A और ये A, ये B और ये B, ये B भी एक दूसरे के क्या हैं, एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट हैं। तो ये क्या होगा, सिस। दूसरे में क्या हो, ये किसका है, अपने माइक बंद कर लें। ए और ए एक दूसरे के अपोजिट हैं, बी और बी दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये क्या हो गए, अपोजिट। तो ये क्या बनेगा, ट्रांस। ये सिस बनेगा और ये क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। और ठीक इसी तरह से इस वाले केस में अगर देखें, इसकी जगह हम लोग क्या कर दें, अगर यहाँ पे ये बी और ये सी, ये जो बी है, ये बी की जगह हमने क्या कर दिया, सी कर दिया। अगर यहाँ सी कर दिया आपने, यहाँ सी कर दिया, तब भी ये देखिए एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, तो ये सिस बनेगा। ये ए और ए एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। लेकिन अगर फिर आप MABCD, तो इसमें कितने बनेंगे, 3। कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। यहाँ पे आपके 2 बनेंगे, यहाँ पे 2 बनेंगे, यहाँ पे नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा। तो क्या है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर केस में अगर आपके ये लीगेंड्स इस तरह से अटैच हैं
तो आप देखते हैं कि कितने तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी है। आपने देखा फर्स्ट टू केस में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ में दो दो आइसोमर बनेगा, एक सिस और ट्रांस। और यहाँ पे तीन आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, लेकिन दे आर नॉट नोन एज नॉट सिस ट्रांस नहीं कहे जाएंगे, but they are known as ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहे जाएंगे। कैसे? आप देखिए, यहां पे क्या करिए, एक पोजीशन फिक्स कर लीजिए। ये हम लोगों ने क्या किया है, ए की पोजीशन फिक्स कर ली। ए के रिस्पेक्ट में बी कर दीजिए, या तो ए और बी एक दूसरे के ट्रांस, ए और सी ट्रांस, और ए और डी एक दूसरे के ट्रांस। कितने आइसोमर बन जाएंगे? ये तीन आइसोमर बन जाएंगे। और इस तरह से आपने देखा कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जब होगी, अगर सारे लीगेंट अलग अलग हैं, ए बी सी डी का मतलब क्या है, ये लीगेंट हैं। एक लीगेंट, ये सारे लीगेंट एक दूसरे से डिफर करेंगे तो तीन बनेगा। दो लीगेंट एक जैसे हैं और रेस्ट टू लीगेंट अलग अलग हैं, तब भी दो बनेगा। अगर दो लीगेंट एक जैसे और दो लीगेंट एक जैसे हैं, तब भी आपको क्या बनेगा, ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। क्लियर है? तो आपने देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जैसे एग्जांपल आप देखिए, जो एग्जांपल हमने, ये एग्जांपल कैसा है, किसका है? ये एग्जांपल अगर आप देखें, यहां देखिए ये एग्जांपल, इसमें देखिए ये एग्जांपल किसका एग्जांपल हो गया, ये है एम यहाँ क्या है, प्लेटिनम, और ए क्या हो गया, क्लोराइड, A2B2। तो ये कैसा हो गया, क्लोराइड लीगेंड, ये कैसा हो गया, अमोनिया लीगेंड, और ये क्या हो गया, प्लेटिनम। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितने आइसोमर बन रहे हैं, दो आइसोमर बन रहे हैं। यहाँ पे ये सिस है और ये ट्रांस है, सिस और ट्रांस। देखिए यहाँ क्लोराइड अपोजिट है, या अमोनिया अपोजिट पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ अमोनिया 90 डिग्री पे, क्लोराइड 90 डिग्री पे, तो ये सिस कहलाएगा। और यहाँ 180 डिग्री अपोजिट है, 180 डिग्री पे हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे, आपके ट्रांस आइसोमर कहलाएंगे। और देखिए ये दोनों एग्जांपल आप देखें तो आपने देखा क्या है कि टू डिफरेंट पोजीशंस होनी चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने के लिए क्या होने चाहिए, टू डिफरेंट पोजीशंस होनी चाहिए। और दो लीगेंट क्या हैं, अगर सिस और ट्रांस बनना है तो दो लीगेंट एक जैसे होने चाहिए। लेकिन अगर हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जगह आप क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कर रहे हैं, दैट मीन्स 6 जब भी होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो क्या जनरेट होगा, कौन सी ज्योमेट्री होगी, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे ज्योमेट्री क्या होगी, व्हेन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, तो हमेशा ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ओएस का मतलब है यहाँ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जब दो लीगेंट, अब देखिए जब दो लीगेंट क्या है, ये क्लोराइड लीगेंट, ये दोनों क्लोराइड लीगेंट आप इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देख रहे हैं, ये क्लोराइड लीगेंट, देखिए क्लोराइड लीगेंट यहाँ पे क्या है, ये है क्लोराइड लीगेंट और ये क्लोराइड लीगेंट, ये एक दूसरे के एडजेसेंट हैं,
ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट। जब एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, तो ये हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, सिस। ये सिस बनेगा। और अगर ये क्लोराइड लिगेंड यहाँ नीचे वाले, इस वाले में देखिए, इस वाले में क्या है कि ये क्लोराइड लिगेंड और एक ये क्लोराइड लिगेंड, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, 180 डिग्री पे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल में सिस और ट्रांस बनने की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ है, जब दो लिगेंड क्या हो, two of the ligand should be same. Two ligand should be same. अब इन ये जो दो लिगेंड एक जैसे हैं, इन्हीं के रिस्पेक्ट में हम सिस और ट्रांस की बात करते हैं। तो इन दो लिगेंड को अब देखिए, लेकिन अगर तीन लिगेंड हो एक जैसे तो क्या होगा, अगर हम लोग देखें तीन लिगेंड एक जैसे हों तब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए तीन लिगेंड एक जैसे होंगे तो उनके लिए भी हम लोग बना सकते हैं कैसे, देखिए अगर तीन लिगेंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एक जैसे हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कौन से आइसोमर, दो तरह के आइसोमर बनते हैं, एक क्या है आपका फेसियल आइसोमर और दूसरा है मेरिडियनियल आइसोमर। फेसियल और मेरिडियनियल से आप अवेयर हैं नहीं? देखिए फेसियल और मेरिडियनियल ऐसे समझिए कि जब तीन के तीन जो सेम लिगेंड्स हैं वो एक दूसरे की किस पोजीशन पे हैं, तीनों सेम फेज पे अगर एग्जिस्ट करते हैं, तीनों अगर फेज पे एग्जिस्ट करेंगे तो फेसियल आइसोमर बनेगा, और अगर उसमें से एक अपोजिट पोजीशन पे एग्जिस्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका मेरिडियनियल आइसोमर बनेंगे। ये है स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है आपको, ये और ये एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री पे, ये और ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे, ये और ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे, ये और ये एक दूसरे के 90 डिग्री, लेकिन जहां हमने पकड़ रखा है ये एक दूसरे के 180 डिग्री पे। 80 डिग्री। ये जो रेस्ट छूटे हुए हैं ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे नहीं है, 180 डिग्री पे। 180 डिग्री। तो आपने देखा दो पोजीशन है स्क्वायर प्लेनर, एक क्या है इसके रिस्पेक्ट में 90 या इसके रिस्पेक्ट में 90, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या है 180। तो स्क्वायर प्लेनर में दो सिचुएशन जनरेट होंगी, एक क्या है एडजेसेंट, ये एडजेसेंट है एक दूसरे के, ये एडजेसेंट है एक दूसरे के, लेकिन ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर इन्हीं पोजीशंस पे हम रख दें, ये पोजीशंस अगर हम लोगों ने ली, देखिए अब ये जो ग्रीन से समझ रहे हैं तो ग्रीन क्या किया हमने, दो अलग अलग ग्रुप, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के किस पोजीशन पे हैं अपोजिट, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे हैं, तो ये क्या हो गई पोजीशन ट्रांस। लेकिन इसमें से एक कोई हटा के अगर हम इस पोजीशन पे ले आए तो क्या होगा, अब देखिए ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो ये पोजीशन क्या है 6, और जैसे ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट आए तो ये दोनों भी क्या हो गए एडजेसेंट, तो ये पोजीशन कहलाती है सिस पोजीशन। समझ गया? तो सिस पोजीशन तभी होगी जब दो एक जैसे, और इसमें से अगर एक हमने और चेंज कर दिया, सपोज एक और चेंज कर दें, मान लीजिए
ये अलग कर दिया। अब देखिए ये कैसा हो गया, ए और ये बी और सी। तो देखिए ए एक दूसरे के एडजेसेंट हैं तो क्या हो गया, दिस। और यही अगर आप एक दूसरे के अपोजिट कर दीजिए इस वाले को, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो इनसे कोई मतलब नहीं कि ये अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ट्रांस, और ये एक दूसरे के एडजेसेंट हैं तो सिस। तो आपको दिखाया कि दो एक जैसे और ये दो एक जैसे जब हमने दोनों बनाया था तब भी आपको सिस ट्रांस बनेगा, लेकिन दो एक जैसे और ये अलग हैं तब भी सिस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन अगर हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखें, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होगा, ये देखिए ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये इसके रिस्पेक्ट में ये कितने डिग्री पे है, 109 डिग्री 20। इसके रिस्पेक्ट में ये कितने पे है, 109 डिग्री। 109। ये भी 109 डिग्री। इसके रिस्पेक्ट में ये भी 109, ये भी 109। सब एक दूसरे के 109 डिग्री पे हैं। इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी सिस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी नहीं है, सब एक दूसरे के एडजेसेंट है। इसके एडजेसेंट ये भी है, ये भी है और ये भी है, सब एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। इसको ऐसे समझें कि अगर हम इनके स्थान पे ये लगा दिया, ये लगा दिया हमने, कोई अलग ग्रुप लगा दिया, देखिए ये ग्रुप लगा दिया, तो इस ग्रुप के ये भी एडजेसेंट है, इस ग्रुप के ये भी एडजेसेंट है, इस ग्रुप के ये भी एडजेसेंट है। ध्यान दीजिए ये है, अब चारों दिख रहे हैं आपको, यस चारों सर। दिख रहे हैं। यस सर। तो देखिए इसके एडजेसेंट है ये, इसके एडजेसेंट है ये, इसके एडजेसेंट है ये। जब कोई दो अलग सिचुएशन नहीं हुई, कोई भी दो अलग सिचुएशन नहीं है, इसलिए सिस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं हो सकती है। जैसे दो अलग ग्रुप भी हम लोग लगा के देखें, अगर हमने दो अलग ग्रुप लगा लिए, अब देखिए ये ग्रुप है, कहीं भी इसको यहां लगाया तो भी एडजेसेंट है, इस स्थान को छोड़ के देखिए आपके सामने ही हम बदल रहेंगे पोजीशन, इसको यहां लगाया तब भी क्या हुआ, एडजेसेंट। इसके इसके एडजेसेंट है। तो आप कहीं भी लगाएंगे, इन किसी पोजीशंस पे इनको लगाते हैं तो हर एक पोजीशन पे ये एडजेसेंट होंगे। इसलिए टेट्राहेड्रल में आपको कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने, और इसलिए टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब आइए स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर क्या है, स्क्वायर प्लेनर देखिए ये क्या है, ये है स्क्वायर प्लेनर। अब इसी में एक ऊपर इक्वल डिस्टेंस पे और एक नीचे इक्वल डिस्टेंस पे अगर लगा देते हैं तो ये ज्योमेट्री क्या कहलाती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रल हम लोग को पढ़ना है। अब ये ज्योमेट्री क्या कहला रही, ऑक्टाहेड्रल। आप देखें कि ये चार अगर ऊपर और नीचे वाले हटा दें तो क्या बचा, स्क्वायर स्क्वायर बना। प्लान। अब यहाँ ऊपर और नीचे अगर आप लगा दें तो ये टोटल ज्योमेट्री क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल में भी ध्यान दीजिए कि इसके ये क्या है, एडजेसेंट। एडजेसेंट। इसके ये तो दिख नहीं रहा, हाँ
बीच में इसके देखिए, अभी ये एक ही को हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कोई एक ले लेते हैं, ये है इसके, ये क्या है? सर बीच में सर मिडल में बोलिए, हाँ, सर मिडल में रख। दिख रहा है? यस सर, यस सर। यस सर सबको दिख रहा है? अब देखो, इसको ऐसे देखिए, ये ठीक है, इसके Yes, sir. ये एडजेसेंट है, इसके ये एडजेसेंट है, इसके ये एडजेसेंट है। कितनी पोजीशन है पहले यहां आप देखिए, एक के रिस्पेक्ट में कितनी पोजीशन है? 5 6 है। Yes, sir. तो इसके रिस्पेक्ट में एक ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन। इसके रिस्पेक्ट में जो 5 पोजीशंस हैं, जिसमें से इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन एडजेसेंट, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन एडजेसेंट, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन एडजेसेंट, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन। 5 में से 4 पोजीशन क्या हो गई एडजेसेंट, केवल एक यही पोजीशन है जो इसके क्या है? Opposite. अपोजिट ट्रांस, ठीक है, अपोजिट है, और सब एडजेसेंट हैं। रेस्ट 4 पोजीशन, एक ही पोजीशन क्या है इसके? अपोजिट है। ठीक, इसको देखिए, अगर ये है, ये इसके ये चारों सर बीच में लाइए। दिख नहीं रहा है? देखिए, इसके ये चारों एडजेसेंट है, केवल यही पोजीशन क्या है? अपोजिट। दिख रहा है? अपोजिट Yes, sir. तो दैट मीन्स आप जितने भी यहां देखें, 2 ही पोजीशंस आ रही हैं। कौन सी पोजीशन आ रही हैं? एक के रिस्पेक्ट में 4 पोजीशन एडजेसेंट है और एक पोजीशन अपोजिट। Opposite. ऑक्टाहेड्रल में 2 पॉसिबिलिटी है, या अगर 2 लीगेंट एक जैसे हैं, अब हमने चेंज किया, मान लीजिए लीगेंट, अब ध्यान दीजिए कि अब लीगेंट हम चेंज कर रहे हैं, एक लीगेंट चेंज किया। अब देखिए, एक लीगेंट चेंज किया तो क्या हुआ? कितने आइसोमर बनेंगे? कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके ये जो है एक ही अकेला है, इसका और कोई रिस्पेक्टिव पोजीशंस नहीं। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा हम सिमिलर टाइप ऑफ ले आए तो क्या होगा? ये जो दूसरा आएगा, कहाँ आया? इसके ये जो अपोजिट था वहां लाएं। देखिए, इसके ये अपोजिट है, अपोजिट लाएंगे तो क्या बनेगा? इसके अपोजिट लाए तो क्या बना? ट्रांस। और इसके अलावा इन चारों में से कहीं लाए आइए, इसको ये लगा दिया हमने। इसके अलावा अपोजिट पे ट्रांस बना, कहिए तो इस पे लगाएं, या इस पे, या इस पे, जिस पे कहिए उस पे लगा दें। इस ग्रीन को इस पे लगा दें। यस तो इसके किस पोजीशन पे? इस बना एडजेसेंट पे। यस तो क्या हो गया? सिस। सिस चाहे तो यहाँ कहिए, यहाँ लगा देते हैं। चलिए, यहाँ लगा दिया तो इसके किस पोजीशन पे आया? एडजेसेंट। चलिए, अब यहाँ आपको बाकी है, कहिए यहाँ लगा दिया तो क्या आया? यहाँ लगा दिया तो क्या आया? तो आप देखिए, 2 पोजीशन आई, या तो एडजेसेंट आएंगी या ठीक इसके पीछे लगाएंगे तो क्या आएगा? ट्रांस। इसके अलावा सारी की सारी पोजीशन क्या होंगी? सिस। क्लियर है? तो जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 2 लीगेंट एक जैसे हो, 4 लीगेंट एक जैसे हो, तो एक पॉसिबिलिटी, अभी हम एग्जांपल दिखाएंगे, क्या है? एक क्या है? सिस की और दूसरे ट्रांस की। ये ट्रांस है, और इसमें अगर इसको हटा के इस पोजीशन पे, कहीं भी इस पोजीशन पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिस। तो
केवल दो पॉसिबिलिटी है, दो लिगेंड एक जैसे हैं, एक सिस और ट्रांस। ट्रांस। अब देखिए, एक मान लीजिए लिगेंड और आपने चेंज किया तो क्या हो सकता है। अब देखो, एक लिगेंड हमने चेंज किया और तो क्या होगा। अगर देखिए, ये हम ऊपर वाला अभी हटा देते हैं, तो पहले मान लीजिए यही बना था ना स्क्वायर। देखिए ये है क्या, स्क्वायर। अब एक इसके ऊपर आपने लगा दिया और एक इसके नीचे लगा दिया, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। अब देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री बनी है, ये कैसी बनी है कि जैसे ये 5 हैं आपके, ठीक है, ये है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है। थोड़ा सा मिड में कर दीजिए। यस सर। हाँ चलो, दिख रहा है सबको। यस सर। अब देखिए, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये एक्सिस क्या हो गई, एक्स एक्सिस, ये एक्सिस क्या हो गई, वाई, और ये क्या हो गई, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग दो हो गए लिगेंड, ये जेड एक्सिस के अलोंग, दो लिगेंड एक्स एक्सिस के अलोंग और दो लिगेंड वाई एक्सिस के अलोंग। अब देखिए कि ये और ये तीन अगर मिला दें तो क्या बनेगा, एक ट्रायंगुलर फेस जनरेट होगा, बनेगा कि नहीं। यस सर। अगर हम इसको नीचे हटा दे रहे हैं, देखिए इसको और इसको मिला दें तो क्या होगा, ट्रायंगुलर फेस बनेगा कि नहीं बनेगा। यस यस सर। इसको बनेगा और सर। इसको मिला दें तो दूसरा ट्रायंगुलर फेस बनेगा। यस सर। यस सर। इसको और इसको मिला दो तो तीसरा ट्रायंगुलर फेस बनेगा, और इसको और हमारी तरफ दो हैं, इन तीनों को मिला देंगे तो ट्रायंगुलर फेस जनरेट होगा। यस होगा। यस सर। कितने ट्रायंगुलर फेस जनरेट हुए, 4। इसी Yes, sir. तरह से नीचे भी और 4 ट्रायंगुलर फेस जनरेट होंगे। इन दोनों को मिला के एक इन दोनों को मिला के ये, फिर इन दोनों को मिला के ये, और फिर इन दोनों को मिला के ये, कितने फेज जनरेट होंगे नीचे, 4। और तो आप ये जान लीजिए कि ऑक्टाहेड्रल में कितने फेजेस होते हैं, ट्रायंगुलर फेज 8 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। क्लियर है। अब देखो, Yes, आप sir. लोगों ने पढ़ा होगा कि दो तरह के, एक और जब 3 एक जैसे हो जाए तो आप लोगों ने पढ़ा है क्या कि फेसियल, क्या पढ़ा है, फेसियल। Asian. फेसियल का मतलब किसी एक, जो ये फेस हमने अभी बताया है, उन तीनों पॉइंट्स पे अगर सिमिलर टाइप का लिगेंड आ जाएगा तो वही क्या कहलाएगा, फेसियल। ध्यान दीजिएगा, ये जो कोई भी फेस ले लीजिए, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का, एक फेस के तीनों पॉइंट पे अगर सिमिलर लिगेंड आ जाएगा तो वही ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, फेसियल आइसोमर। Facial isomer. जैसे आप देखिए, यहां हटा दिया हमने, यहां लगा दिया, इसको हटा दिया, यहां लगा दिया, इसको हटा दिया यहां, ठीक है, लग गया। तो ये तीनों क्या हो गए, एक फेस के। तो फेसियल आइसोमर क्या है, जब तीनों किसी पर्टिकुलर फेज से बिलोंग करें तो वो आइसोमर कहलाता है फेसियल आइसोमर। ध्यान दीजिए कि 3 लिगेंड एक जैसे हों और ये तीनों लिगेंड इस ऑक्टाहेड्रल के किसी भी फेस पे बिलोंग करते होंगे तो वो आइसोमर कहलाएगा फेसियल आइसोमर। और इसके अलावा अगर इसमें से ये दो, कोई दो अपोजिट कर दीजिए, कोई दो क्या करिए, अपोजिट ट्रांसपोजिशन पे कर दीजिए, तो तीसरा कहीं भी रहेगा,
इन दोनों के क्या होगा, एडजेसेंट होगा। ये जो ट्रांस पे हैं इन दोनों के एडजेसेंट होगा। और तीसरा, जब इन दोनों के एडजेसेंट होगा तो आप ध्यान दीजिए कि ये है फेस, ये अगर प्लेन डालें यहां, कट करें यहां, इसको हम कट करें तो कट करेंगे तो पाएंगे क्या, देखिए ये कट कर रहे हैं, ये कट करने पे क्या पाएंगे, ये कट हो रही है ऐसे, ये एक प्लेन का पार्ट हो जाएगा, ये भी, ये और ये चारों क्या हो जाएंगे, एक मिरर। अगर मान लीजिए यहां एक इमेजिनरी मिरर डाल दिया आपने यहां पे, तो ये और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, उस मिरर का पार्ट हो जाएगा। और ये जो हमने दोनों पकड़ रखे हैं ये एक दूसरे में रिफ्लेक्ट करेंगे, इधर वाला इधर रिफ्लेक्ट करेगा, इधर वाला इधर रिफ्लेक्ट। तो एक दूसरे का कैसा बना, मिरर बन गया। तो इसी को कहते हैं मेरीडेनियम। क्या कहते हैं, मेरीडेनियल। मेरीडेनियल। तो मेरीडेनियल देखिए क्या है कि दो किसी को ट्रांस पे रख दीजिए और तीसरा कहीं रखिए, यहां रखिएगा तब भी इन दोनों के एडजेसेंट, यहां रखिएगा तब भी इन दोनों के एडजेसेंट, यहां रखिएगा तब भी इन दोनों के एडजेसेंट रहेगा, यहां रखिएगा तब भी इन दोनों के एडजेसेंट रहेगा। तो आप जानिए कि दो ही तरह के तीन अगर आप एक जैसे रखेंगे तो दो पॉसिबिलिटी होगी। क्या है कि दो अपोजिट और एक एडजेसेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेरीडेनियम। यहां पे दो अपोजिट हैं, इसलिए इस आइसोमर को हम ट्रांस भी कहते हैं, लेकिन ट्रांस वाले को मोस्ट सुटेबल वर्ड इज मेरीडेनियम। और अगर तीनों एक ही आपने फेस पे रख दिए तो सब एक दूसरे के क्या हैं, इसके ये एडजेसेंट, इसके ये एडजेसेंट, इसके ये एडजेसेंट। तो फेशियल वाले में तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट हो जाएंगे, तो ये सिस कहलाता है। तो फेशियल वाला सिस कहलाएगा और मेरिडियनियल वाला ट्रांस कहलाएगा। फेशियल में आप ऐसे समझें कि किसी भी 8 फेस हैं, 8 फेस के तीनों पॉइंट में अगर आपने रख दिया तो कोई भी तीनों एक जैसे, तो वो फेशियल हो जाए। और मेरिडियनियल में क्या है कि दो कोई अपोजिट रख दीजिए, ये जो सेम वाले हैं दो कोई अपोजिट रख दीजिए, तीसरा कहीं भी रखिए, तीसरा कहीं भी अगर आप रखते हैं तो वो हमेशा और हमेशा क्या कहलाएगा, हमेशा और हमेशा मिरर इमेज देगा। और वो मिरर जो इमेजिनरी मिरर होगा वो हाफ पार्ट का रेस्ट हाफ पार्ट क्या होगा, मिरर इमेज होगा, एक प्लेन होगी। और जहां मेरिडेनियल होगा वहां हमेशा एक प्लेन जनरेट होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। और इसी को हम जब आगे समझेंगे ऑप्टिकल आइसोमर में, ऑप्टिकल आइसोमर में हम समझेंगे तो आप देखेंगे कि जहां जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो आप पाएंगे कि मेरिडियनियल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन फेशियल ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि इसके पास कोई मिरर या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। क्लियर है? तो ये ऑक्टाहेड्रल में अब आप देखेंगे कि क्या है कि दो एक जैसे हैं तो दो पॉसिबिलिटी है सिस और ट्रांस, तीन एक जैसे हैं तो दो पॉसिबिलिटी है सिस और ट्रांस की। और यहां सिस और ट्रांस ना कह के हम लोग कहते हैं फेशियल और मेरिडियनियल। क्लियर है? अब चार एक जैसे हो जाएंगे तो रेस्ट टू क्या हो जाएंगे, एक जैसे। रेस्ट टू क्या हो जाएंगे, एक जैसे, तो फिर पहली वाली पॉसिबिलिटी आ जाएगी। 5 एक जैसे हो जाएंगे तो आपको हमने पहले ही बताया है कि एक अलग है 5 एक जैसे हैं तो वहां पे सिस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहाँ कहाँ बनेंगे आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि टेट्राहेड्रल में नहीं बनेगा,
स्क्वायर प्लेनर में बनेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ, और स्क्वायर प्लेनर में भी दो कंडीशंस हैं। एक क्या है, दो लीगेंड एक जैसे हों, रेस्ट टू एक जैसे हों, या दो लीगेंड एक जैसे हैं, रेस्ट टू अलग अलग हों, या सारे लीगेंड अलग अलग होंगे। तो एक के रिस्पेक्ट में 3 बनेगा और रेस्ट जो अभी इसके पहले बताया उसमें केवल 2 ही बनेंगे। और ऑक्टाहेड्रल में अगर 2 लीगेंड एक जैसे होंगे तभी बनेगा सिस और ट्रांस, या 3 लीगेंड एक जैसे हैं तो फेसियल और मेरिडियनियल बनेगा, जो सिस और ट्रांस की कैटेगरी में आएगा। ऑप्टिकल आइसोमर क्या है? जब किसी के सोल्यूशन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं और वो सोल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दे रहा है, रोटेट करेगा वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। तो वो आइसोमर क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर के लिए क्या है, इसी को हैंडेडनेस कहते हैं कि एक हाथ दूसरे हाथ पे सुपर इम्पोजेबल है। तो जो भी मॉलिक्यूल, जो भी कॉम्प्लेक्स अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा वही ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्सपेरिमेंटल पार्ट से हम बता सकते हैं कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेंगे वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उस मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर एक्टिव कहते हैं। और जो आइसोमर एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स को एनेंसियोमर। Two optically active isomers of a particular complex which are mirror images of each other, they are known as enantiomer. और जो दो optically active isomers which are not mirror images of each other but they are optically active, they are known as distereomers. उनको क्या कहेंगे? डाइस्टीरियोमर्स। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्टों में कि एनेंसियोमर क्या है, डाइस्टीरियोमर क्या है, और मेसोफॉर्म क्या है, और रेसमिक मिक्सचर क्या है। यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में ना जाके केवल और केवल किन किन कंपाउंड्स में ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बन सकते हैं उन सबको हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे।